ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਆਹੋ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ। ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ भी नहीं सोचा। ਕਿ औरतां ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ये कैसा कमाल है कि बहू ने पहले अंदर करवा दिया मुकदमा करके, बच्चों का खर्चा मांगती रही, 15,000 रुपया माहवार कमाने वाला मजदूर। आप अंदाजा करें कि वो कुछ भी न कर सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। हम दुखी इंसानियत के जितने मर्जी दुख को बांट लें, लेकिन ये कम होने का नाम नहीं लेता, ये बढ़ते ही चला जाता है। ये एक मजदूर फितरत इंसान इस वक्त कैंप जेल के बाहर बैठा हुआ है। इसका 14 साल बेटा अब किस मुकदमे में अंदर है ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे, जो हर घर का मसला है, यानी घरेलू नाचाकी। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है, वो ना अपनी औलाद को देखते हैं ना बूढ़े माँ बाप को देखते हैं, और एक दूसरे को अदालत में ले आते हैं। अदालत खर्चे के मामले में जब खर्चा नहीं देने के काबिल रहता शोहर, तो फिर उसे हवाला पुलिस कर देती है, और पुलिस जो है वो जेल में बंद कर देती है। इनके साथ हुआ क्या, मसला क्या है, बेटे का क्या नाम है, ये सब कुछ पूछे। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। की हाल है, ठीक हो? ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਦਾ। कितनी देर तो बैठे होते? ਇਹ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ये तो 2-3 घंटे और बहना। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। की कीता ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਹੋ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ। ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੂ? 5। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਰਫਖਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਰਫਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 15,000 16,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕਰ। ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਲਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ गई। हाँ बस वापस आ गई। ये कैसा कमाल है कि बहू ने पहले अंदर करवा दिया मुकदमा करके, बच्चों का खर्चा मांगती रही, 15,000 रुपया माहवार कमाने वाला मजदूर। की ना है बेटे का? जुबैर, मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर 15,000 माहवार कमाने वाला, यानी कि उस औरत का शोहर। आप अंदाज़ा करें कि वो कुछ भी न कर सका, और 15,000 से क्या खर्चा देता, कितना दावा किया ही खर्चे का? ये नहीं पता भी 12,000 रुपया तो पता नहीं 15,000 रुपया की था। 15,000 रुपया महीना हाँ जी। वो नहीं दे सका, जिसकी 15,000 अपनी सैलरी थी, उसने कहाँ से देने थे? उसको 3 महीने का रगड़ा लगवाया, और अब बड़े बीच में पड़े हैं और सुलह करके वो वापस आ गई है। ये सुलह के कागजात हैं, और ये अपने बेटे को लेने के लिए हैं। तो वकील ने कितने पैसे लेने? नहीं कोई पैसा। कोई पैसा नहीं लिया। अब इतने मिलन आंदे सो बच्चे हाँ जी हाँ जी। को पैसा लगता ही इतने? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਉਹੀ। बस वही। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਚਿਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਈ ਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਦਰੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। घरेलू नाचाकी के मसले आखिरकार अपने बेडरूम से क्यों बाहर निकलते हैं? हम क्यों लोगों के दरमियान लेके आते हैं? हद तो यह है कि अदालतों में भी ले आते हैं, थाने कचहरियों में भी ले आते हैं। बूढ़े माँ बाप को सड़कों के ऊपर बैठने पर मजबूर कर देते हैं। ना सास का लिहाज, ना ससुर का लिहाज, और ना ही अपने माँ बाप, और ना ही उन पैदा किए जाने वाले बच्चों का लिहाज। माशरा अगर इस बुराई में इतना अटापटा है तो क्या इसके पीछे भी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं? इसके पीछे माँ बाप की तरबियत का फुकदान है। इसके पीछे तालीम और तरबियत देने वाले वो साथीज़ा कराम ज़िम्मेदार हैं। कौन ज़िम्मेदार है? आपको चटपटे प्रोग्राम कितने पसंद हैं? इन बढ़ रहा अला हो ला अला, ये पूरा घर 3 महीने तबाह हुआ रहा है। उस घर की तबाही की कैफियत को आप समझ सकते हैं जब रात की तरीकी में बाप अकेला बच्चों के बगैर सोता होगा, या वो माँ जब अपने बच्चों को कुर्लाते हुए देखती होगी।
उसे अपनी गलती का एहसास होता होगा। क्या उस शोहर के साथ अब किस तरह निगाहें मिलाएगी जिसे 3 महीने का रगड़ा दे चुकी है वो, और वो शोहर उसको किस तरह बनाएगा जिसने कैदोबंद की वो सोबतें सही हैं कि एक सिगरेट लेने के लिए पूरी पूरी ड्यूटी जो है 5-5 कनाल की साफ करनी पड़ती है। क्या अब इनकी हंसती बसती जिंदगी जो खुद ही इन्होंने तबाह की कभी खुशहाली का मंजर दिखा सकेगी? आज का ये सेंसिटिव तरीन प्रोग्राम है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके हर घर में एक ऐसा किरदार मौजूद है। किसी माँ ने अपनी बेटी को लड़ा के अपने घर में बैठा रखा है और किसी बाप ने अपनी बहू के ऊपर बुरी नज़र डाल के उसको घर से ही भगा दिया है। नाज़रीन, माशरे की ऐसी बेहिस्सियाँ और ऐसे गंदे किरदार खुदा की कसम बिल्कुल दीमक की तरह रिश्तों को चाट चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।